because of the unhygienic food or the unhygienic habits of eating the foods. And that is what our main focus is. Secondly, we have made our industry and market analysis. So, although as we have discussed, our main target audience is the agricultural product we are dealing with. So, our target audience is the organic farmers who are dealing in the organic products. With the help of their manure, they will get that. Now, the problem arises problem is basically that they will not have that sufficient demand of the manure. The suppliers were ready to supply, the suppliers were not in a position to supply them manure in a very good quantity. So they will not meet the export demand that is coming across in front of them. So here we are to resolving this. Now we need to understand that agriculture is the most important sector of the Indian economy. And about 18% of the GDP is contributed by the agriculture sector. And about 50% of the employment opportunities is also generated by the agriculture sector. So if we are targeting to the agriculture sector, then we are creating a huge change, and that is the most focus upon. India is the largest producer, as we all know that India is the largest producer of the pulses, rice, wheat, and the spices. We need to understand that the irony behind this is that the farmers will know that the agriculture product they are dealing with, if they use the natural fertilizers like the manure, if they use that natural fertilizers, their productivity will increase, and as compared to the man-made fertilizers. But why they are not using this is basically the time requirement of the conversion of that waste into the manure. So how they will get that manure? So we focus upon that Indian market is a very fragmented market. We have studied that and we have make analysis that in India approximately there are small producers who are producing the manure, but they are supplying to the very small agricultural sectors. They are not happily supplying their products, or they will not meet the demand of the large producers that they want the manure in the huge quantity. So we are providing that. And secondly, the basic problem arises is that why the other people is not thinking of producing the manure in a very large quantity, because the methane gas that is come out from that process is a very harmful gas, and it is a greenhouse gas. So we will convert that methane gas, the one molecule of the methane with the combination of the two molecules of oxygen, we will get converted into the hydrogen, H2O and the CO2. Now with this conversion, the energy which will comes out is also being stored and then sent to the Hindustan Petroleum or any agencies so that it can be used as a CNG, compressed natural gas. It can be used for the households also. So this is main focus, and the plant that is required, we can get that plant on a lease basis initially, and then we will come across with the investment of ours. Now, as we have discussed about that, our plan is after making the manure and the proper provisions that we have taken across, that the harmful gases is the provisions that we have taken, that how to convert that harmful gases into the energy. We need to understand that what are the techniques that we follow to increase our sales. Now, here's the point is that there is every entrepreneur in this India, and not in India, in the world also, they are always busy or they are always trapped into pushing their product and increasing their sales. They are always busy in pushing their product and increasing their sales. But we are not here in pushing their product and increasing the sales. We are also focused upon the plans. We are also focused upon the people. We must come across the different peoples who are the view that what is your product and what is your views about our company. We need to focus upon that. And our basically technique is the newspaper. Firstly, initially we'll go through the newspaper, because newspaper is widely spread to the local areas and to the various agricultural sectors. And about I think that 10 or 20% of the agriculture sector was not being able to very well aware of the social media. So initially we will go through the newspaper. That is the indirect selling, indirect technique of the marketing. And the giveaway of the product is also very essential. We will provide that products, because if we give away our product, then we will get the unbiased reviews from the customers. And that unbiased reviews is the genuine pros and cons that we have come across. And the last point that is we think is very essential is that reaching out to the different peoples and providing the sample of our product without charging any money, and ask them to share this product with the fellow beings. Because as you think, if as a company, and I'm saying that please make that product, or you can use that product,
they will not believe in that. Because they will not think that it is very authentic. But if the fellow agriculturist was say that please you can use this product, it is a very helpful and it will increase the productivity, then they will also use that. Now coming across to the operating plans, the office that we needed is the very important for the functioning of all the business. So we need the office, and then our initial investment is on trucks and the tempos. That is from collecting the garbage from the municipal corporations, and we are also dealing that initially we are not coming across with the agreement with the municipal corporation, but after some times we will get collaboration with the municipal corporation, so that initially it will also helps in building our product, and also if the Indian government will also come across with this, then it will be a helpful and it will be a very technical, not so technical, it will be a good image building of our product. Secondly, if the product price is also increased by the trucks and tractors, we will outsource our facility and we will make our product or trucks and tempos on the lease basis. And initially we are not converting the waste into the manure. We are not converting the waste into the manure by the machines, but afterwards, if we get some investment, then we are able to convert them. And at last, I just want to say that these are the things that we come across, and these are the small initiatives that we are thinking is really important. Now, the most important is actions. I think that as I'm standing over here saying that these are the things that we need to do, this is the most important thing, this is not the most important thing, but we believe that actions are more important, and if you come across towards the actions, then it will take into the reality. So, as I'm saying that initial days it was believed that a chaiwala would never govern the world's largest democracy. But with his aim, with his ambitions, with his dedication, with his devotion, he proved them wrong. And he will say that अच्छे दिन जरूर आएंगे. And I will go one further for saying that अच्छे दिन जरूर आएंगे if we are come across with this plan and we invest in this. Thank you, sir. Any queries or any questions you can ask him. Any queries? Only from the judges. Only from the judges. I think you can ask. you. Ma'am, you go ahead. You can have the program. I had a query. As you said in your sales and marketing plan, you would rather give the product to the customer and ask for their unbiased opinion. But my question is, manure is a thing that is not like one-time application product. How much quantity would you give out for free? Because obviously it will cost you money also. And also, in how much time will you get that review? And will you get an unbiased review? Like, how will that cycle work is what I am confused about. Actually, because of the shortage of the time, we will not come across the financial plan. Our financial plan is that initially we are producing about 1 ton of our product, and 1 kg of the manure we are sold at the 10 rupees cost. So if 1 ton of the product is manufactured in one day, then approximately 10,000 rupees. And that 10,000 is multiplied by 50 tons, that is our monthly target that we will think upon, then it will come across with the amount of 5 lakh. And in the 12 months, we are come across with the 60 lakh. Okay? And this is what we think that. And our, firstly, initially we think that we are not focusing on the investing our money. We will providing the products on lease basis, and approximately with the depreciation of the assets, and the labor is also very essential in this. There is a semi-skilled labor is also required, and if we come across with a semi-skilled labor, about 1 lakh of the rupees, if you think, if the 1 lakh of the rupees is to be invested on the labor that they are working upon, then 12 lakh rupees, initially we will get, in the first year, we will able to get the 48 lakh as a profit, and that is what we think. And as you say that if you are supplying your samples to the agriculturers as a fee, so we believe that we are not supplying to the small producers, we are supplying to the large producers who procure the manure in a very large quantity. And if we are able to satisfy them, and if that they can use the manure from us, and they can procure the manure from us, then it will be easy for us not to striving or thriving from each and every small producers, but getting to the large producers. That is what we think. Thank you. Judges, actually I was going to ask the same question only, कि what will be your financial plans? But I think so, the problem with what I got it, that you were talking about that you will create employment opportunities, then you will Yes. take plant on lease, Yes. then you will distribute our samples. Yes. So it will be very difficult task that you should have that much amount of investment with you.
Then only you can do for Actually, it. Na? actually, this is our This plan. is the practical problem which you Actually, are facing. in the industrial area, there was a factory named as Palta Limited. And that factory was also making that manure. And I was very fortunate enough to go there. And they were also telling me that the basic problem that arises is that the society will not happy with you as you are converting the waste into the manure, and the gas that is emitted is a very awful gas, and that is why the society was not willingly say you that to be in this business. So we think that we can convert that methane gas by reacting it with the oxygen into the CO2 and H2O water. And that energy which is emitted, we will collect that energy and we will supply that to the Hindustan Petroleum as a CNG product. And that is what we think is our key difference between the Palta Industries and us. So these are the things. Actually, ma'am, we are not, as I also said, action plan is totally been different with the ways of our thinking. But if we think this much big, then if we shoot towards the stars, if we shoot towards the moon, we will come across to the stars. That is what we think. Thank you. I have one question. Yes, sir. Ma'am has said rightly, you have to make a business practical, Yes, sir. feasible. You have to have an action plan. First of all, what is the investment cost? What is your selling point? What will be your buying point? And there are a lot of other situations also which you have to handle. For example, will pollution department allow you to handle these gases? That is also a very big issue. Yes, sir. Very, very big issue. Yes, sir. This is a very big issue. And I know these guys, Palta guys, they have been trying their hard, but they are still successful. The major important thing you should draw a line is what is the cost involved, how much you will be able to do it, what will be the initial phase, second phase. Only then you can come into a practical situation. I'm said rightly. Actually, sir, we didn't think that there is a facility to provide the material. We have that material, we have that notes in which we have detailedly explained that what is our plan, our financial and our operating cost. We have that. If you allow Actually, me, I think so. You can I should get talk this? about your actions first. Yes, ma'am. आपको उसको उल्टा करना चाहिए. आपको ये बताना चाहिए कि ये चीजें हमारे actions हैं. Then we should discuss. वही हम एक्शंस की बात कर रहे हैं. मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उनको मेन प्रॉब्लम उनको आ रही थी कि जो एनवायरमेंट बोर्ड है, जैसे सर आपने कहा कि वो उनको अलाउ नहीं कर रहा था. और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उनको अलाउ नहीं कर रहा था, उनकी प्रॉब्लम यही थी कि वो उस मीथेन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे. उनकी कॉस्ट वहाँ पे ज्यादा लग रही थी और वो लार्ज प्रोड्यूसर्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बल्क में क्वांटिटी में बन नहीं रहा था उनसे. तो अगर वर्मी कंपोस्टिंग, वो कंपोस्टिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, अगर वो वर्मी कंपोस्टिंग रेड फॉर्म से यूज करें और उस मैन्योर का 3 महीने का साइकिल होता है उसको कन्वर्ट करने का, अगर वो 3 महीने का साइकिल को कम कर दें, उससे हमारा प्रोडक्ट और फिजिबल और रिलायबल और जल्दी मार्केट में पहुंच सकता है. ये हमने ये प्लान देखा था, हमने थोड़ा एनालाइज भी किया था. हमारे पास पेपर वर्क है, अगर सर आप अलाउ करोगे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. उसमें पूरे डिटेल दी हुई है कि ऑपरेटिंग प्लान क्या है, उसमें फाइनेंशियल प्लान क्या है, उसमें हमने लिखा हुआ है. लेकिन ऐसे मटेरियल प्रोवाइड कराने का तो You will just hand over them. You can discuss. I think that others also. Yes, yes. लैंड का इशू वो कम करना है आपने कहा. Yes, sir. तो लैंड का इशू कैसे सॉल्व होगा? सर स्टार्टिंगली वी हैव दैट 32 वाले लैंड चाहिए सर हमारे इनिशियली. तो वहाँ पे हम सर छोटे छोटे बिट्स बनाएंगे, वो मशीन से होते हैं, क्रेन से बनाएंगे सर, और उसको हम लीज पे एक्वायर करेंगे इनिशियली. तो वहाँ पे लेबर लगेगी जो उसको पुट करेगी गार्बेज को उधर बिट्स में. लेकिन बाद में हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे और वहाँ पे एक मशीन एम्प्लॉय करेंगे जो इस चीज़ को कन्वर्ट करेगी. इनिशियली इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हमने सोचा कि पहले लीज पे लें, लेकिन लीज पे भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अगर हम लीज पे चीज़ें शुरू कर देंगे. नहीं तो अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इनिशियली हमारे को ये इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ तक चाहिए. ठीक है. थैंक यू सर. The next team, Manya and Gursneha, please come. Let me remind you of the rules. 8 to 10 minutes is your speaking time. 8 minutes, after 8 minutes the first bell will ring and 10 minutes the final bell. And your marks will be given on how innovative your business idea is. All the best.
A very good afternoon to my respected teachers and my all dear friends. Myself Manya and my name is Kursehet. So today we are presenting a business idea related to earthenware collectives made out of clay. Nowadays we all use steel utensils at home in our daily routine because it is very reliable. But here we are only seeing one side of coin. No doubt it is reliable, sustainable in nature and can be used for a longer period of time. But does anyone know the history behind steel and plastic utensils? So let me tell you the history of steel utensils. In British times, Britishers used to serve the food in steel utensils as a punishment because in steel utensils, all the minerals fade away and the food does not become nutritious. That's why we create earthenware collectives. Now, you all will having a question in your mind that why we choose earthenware as an alternative of steel and plastic utensils. So let me tell you the benefits of earthenware utensils. Firstly, it retains the original taste and nutrition of the food for a longer period of time. It is alkaline in nature and improves the health. It is porous in nature which increases its shelf life. It does not cause any harm because it is heat resistant. One other benefit of earthenware utensils is, if we are making the food in earthenware utensils, it will consume or require less oil as compared to the steel utensils. In old times, life expectancy rate of a people was more as compared to a present scenario because at that time people used glasses prepared by mud. Even the popular beverages like tea and lassi were served in a mud glasses to the consumers. So, from the business point of view, its major benefit is it requires less capital. In India, the pottery industry comes under the small scale industry and it is exported to over 140 countries from India. Like all other handicrafts and other arts, the tradition of pottery making is quite old in India. Pottery is pretty famous in most of the Asian countries and is spreading gradually all over the world. As it is expanding day by day, it is providing employment opportunities. It is a source of income for many people. Its major benefit is it is also recyclable in nature. It is also not very expensive. It is pocket friendly and can easily affordable by anyone. It is also not harmful for the environment, and one of the most biggest characteristics of earthenware is that it is eco-friendly. There are many businesses who sell earthenware utensils, but still it is very underrated in India. So if the government will support and provide funds to this business, one day surely from the small scale industry, it will definitely become a large scale industry. Here we are presenting a small video in front of you. We conclude by saying that we can make money from money. Money from mud. Thank you. Questions, service? बनाओगे कैसे इनको? मैं नहीं बता। सर जो आर्टिशंस है ये अंडररेटेड इंडस्ट्री है। ये काफी फेमस नहीं है कि हर कोई बना रहा है, काफी सारे बना रहे हैं, पर ये काफी अंडररेटेड है। जैसे जो स्मॉल आर्टिशंस हैं, हैंडीक्राफ्टेड पीपल हैं, जो हम देखते हैं, वेंडर्स हैं जो बेचते हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और नेटवर्क की कमी है। तो अगर हम सब कुछ जोड़े तो इसके साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और इसकी अवेयरनेस भी होगी कि इसकी काफी हेल्थ बेनिफिट्स है। कोई पैटर्न सोचा है कि आप कैसे इसको कैसे मार्केटिंग करोगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी? Yes, we have discussed. हमने ये सोचा कि इसकी कॉस्ट एनालिसिस सोची है हमने कि कितनी कॉस्ट और कितना इससे हम 50 to 60% प्रॉफिट हम इससे जनरेट कर सकते हैं। एंड हमें ये करना है कि इट इज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। सो हमने बहुत सारे लेबर्स को इकट्ठा करके एक नेटवर्क बनाना है, हायर करना है एज वी कैन से, क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगनी है तो लेबर ज़्यादा लगनी है। तो हमने लेबर को इकट्ठा करके ये मटेरियल रेडी करवाना है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। कैपिटल अगर आप लेबर्स में इन्वॉल्व करते हो तो इसमें कैपिटल की कमी होगी? नो, इसमें जैसे कई होती है कंपनीज और बिजनेसेस जिसमें मशीनरी और ये सब कुछ ज़्यादा लगता है। सो इसमें लेबर ही हम यूज़ करेंगे। सो हमारा
रॉ मटेरियल का इसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी और सिर्फ जो हमारी मेजर कॉस्ट होगी इसमें वो सिर्फ वेजेस और सैलरीज टू द लेबर ही होगी और 80% ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है और 20% कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी कि मेजर इसमें जो पोर्शन है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है और तभी हम इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे और जो इसकी हम मीडिया के थ्रू इसकी अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं क्यों हमें रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अंडररेटेड इंडस्ट्री है। I don't know, but I think so आपने शायद ना reusability की बात नहीं की. Like you were talking about the steel utensils, उसमें सबसे बड़ा फायदा ही मिलता है कि they are reusable. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है आई थिंक सो reusability की आएगी क्योंकि मैक्सिमम कितनी देर तक इसको यूज कर सकते हैं. I don't think so. Yes, but it is recyclable. It is recyclable, but I think so it is इसमें प्रॉब्लम reusability की है. What I think. बट मैम कुछ बेनिफिट्स पाने के लिए एज यू नो देर आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन अगर किसी चीज़ के मेरिट्स हैं और उसके डीमेरिट्स भी कुछ ना कुछ होंगे ही बट अगर हम मेरिट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आई थिंक ये हमारी हेल्थ के लिए भी उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम इसको चाहते हैं कि काफ़ी ये मॉडर्न भी हो तो हम इसमें सेरामिक भी आती है वो स्पेशली ये मटेरियल होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ मोर रिलायबल 1 ईयर 2 ईयर की इसकी शेल्फ लाइफ है। मेन बात रहेगा सेलिंग पॉइंट क्योंकि वैसे भी जैसे सोशल मीडिया लगता है वहाँ पर भी हमें ये पॉटरी मिल जाती है बट द पॉइंट है कि आप किस पॉइंट पे सेल कर रहे हो और आप वेबसाइट बना के सेल कर रहे हो। हाँ जी आपका यूनिक सेलिंग एक सेकेंड बट मेरा भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। बात है कि लोगों को किस रेट पे मिल रहा है दैट विल डिटरमाइन कि कितना आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। अगर डेफिनेटली अगर लोगों की इसकी अवेयरनेस होगी तभी आप खरीदोगे अगर अवेयरनेस तो हम सबको है बट फिर आप खरीदते क्यों नहीं आप क्यों नहीं स्टील यूटेंसिल यूज करते हैं। बिकॉज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एटलीस्ट मैं फेस करती हूँ वो ये कि टूट जाते हैं इससे टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर आप इसमें दही भी जमाते हो तो उस चीज़ का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। मैम हियर यू आर रॉन्ग इसका टेस्ट नहीं चेंज होता है टेस्ट रिमेन रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कभी भी घर पे एक मिट्टी के मटके से पानी पियो तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू यूज फिल्टर्स। That's a very subjective thing. That's a very subjective For you it may be very good, but for me it is not. And plus, I have a question. Even in the NASA, it also experimented that they made a saag in a steel kadai and made saag in a mitti ka bartan and they put it in for 3 days. And after that, they find that the minerals in the saag, which is put in a steel utensil, totally dead. It is not very healthy and it is totally awful. But the saag which is made in a mitti ka bartan, it has totally 100% minerals in it. I have a doubt. Like now. अपने डाउट्स बाद में पूछ लें वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम सो या जस्ट कन्फाइन टू जजेस आई एम रियली सॉरी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है हमारे प्रेजेंटर्स ये नहीं है यू कैन आस्क देम इंडिविजुअली। थैंक यू सो मच सो माय नेक्स्ट कॉल इज फॉर हर्ष एंड अरुण दैट्स टीम 2 जजेस। Good afternoon to all my dear judges and dear students.
here we are coming with an idea of smart attendance in the colleges. You know, when teacher came in the class for the taking lectures, there are 45 minutes. Then teachers start taking attendance. Then it will take hardly means 8 to 10 minutes needed for taking all the attendance. But suppose if the class size is more than 60 for 70 students, then it will be very difficult to take attendance in the class. But I think this is the traditional way of taking attendance. So everything is in today's world is digitalized. So we came with the idea of smart attendance so that the time taken to take attendance is 10 minutes, which will be reduced to only 1 to 2 minutes. So I am Arun, and my teammate is Harsh, presenting you the smart attendance idea. Okay. So as you can see, manual attendance is taking so much time in our classroom. But we are introducing the main smart attendance solution. In this application, what will we do? We just need only a tap of a finger from a teacher, then attendance will be automatically registered to a database. So no need to take attendance with pen and paper. In this we are saving our trees also. We are reducing the use of registers also. So this is a very simple and time-saving criteria of using. Okay, so let me tell you how the app will function. Okay, then first of all, we all have smartphones. In the colleges, it means every student has smartphone. So first of all, every student have their app, and the teacher also have an app. You can suppose like a teacher is a host of the class and the student are the main users of that. Then what will the teacher will do when the teacher will came into the class? Then you can see here the prototype is when the teacher will came into the class, he will, you know, this data is basically simple. You have today's class in mathematics, physics, biology, etc. And what will teacher will do? He will ask you to open the app. Then, you know, when the time of the classes, then he will just simply generate like this. Yes. Then he will come and generate a code for the students. Then student will easily put this code into the app for means entering into the class in a virtual class. This data is basically on the teacher side, and this will be on the student base. How the functionality of the student is. You can see that today's classes, check attendance report. All this function will be in our app. And when teacher will generate a code, then student just need put this code and enter into the class. Then on one press, the teacher will take attendance. So you can see in classes like 60 to 50 students, this will become very easy so that we can take attendance easily. So by using this method, every teacher can use purely 43 minutes of the class so they can teach to the students. Okay, so now this will come into mind how we are going to expand our users. So basically, to expand this app, we just need to collab with colleges. Suppose if a college have more than 5,000 students and some teachers, if we collab, you know, basically courses of 3 years and 4 years. Suppose a college make a rule that you have to use this app, then you need to have this app on your phone for over 3 years. So by using this app, we have lots of data from teachers, from students, what they are doing, how is the attendance there is. So we have lots of data, so we can use that data for our business. So we can provide our basically lots of various organizations which need their type of data, how the student is punctual, how they are. Because in today's we see that most of the students are just not taking any classes, just go here and there and making. I think this is a problem. You know, teachers came here for
just हमें पढ़ाने आते हैं, तो basically when the teacher have the access, they have the access that they can easily send the reports to their parents, with the one click. सर अपना चल रहा कुछ कैंसिल मैं किस Okay. So then let me give how this idea will be generated to profit. Suppose take assumption that our app have more than 1 lakh downloads. This is assumption, okay? Then suppose the users of this app, 1 lakh users, only 3,000 students will, the users will be teachers, and the 97,000 users will be students. Then we will just charge. We will just charge 100 rupees from teacher for 3 months, so that they can use our application. On the student side, we just provide personalized ads so that they can be useful for the students. And by using this revenue model, we can generate more than 5,10,000 rupees every 3 months. Basically, for the investment, we just need to develop the functionality for the first time. Then all the rest of the money will be needed for the database and basically for how the data will work, how the data will effectively generated in our app. So thank you. मुझे आप एक पॉइंट बताइए कि like I have seen various other type of applications as well, like classroom teaching है, Jeev sir was there, तो वो शायद मेरी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. So how is basically your application different from them? I already see so many apps like basically these type of apps like do what basically they use Wi-Fi locations and people are there and there. They use basically in companies. I don't think any college is using this type of functionality. Like colleges are using. That's why I'm asking you. What is the difference between your? Difference is like that. We just need to use the code for the for using the application. Student will use the code and then they will enter. Then teacher have the functionality to take attendance. Then attendance will be automatically recorded in the database. Basically, this type of functionality is not, I think, used by any app. Suppose if we launch the app, then more competitors also use this functionality. But the competition is needed in the market. Swiggy and Zomato is also there. They are having both the same functionality. They are doing the same things. But if they are generating some revenue. So I think the competition in the market is just a simple thing. So the app will be, our app will be more less time saving and reliable and more easy to use to the users. Okay, thank you. Right now which is coming down, and second, the students are very confused because the numerous number of skills and knowledge and courses which they want to pursue, but they don't have a way to be the way they can pursue it because a lot of confusion. So our industry, our business wants to guide them by assessing them through the test, telling them what skills, what careers they can pursue according to their IQ. So main motive is to remove their confusion and take them to from career confusion to career clarity. And that's why we form our company. And our company logo is NAS Guidance Gateway, which was complete career guidance. It will take you from the guidance, give you the roadmap, and will take you to the end of your career, and will provide you a very good guidance. Now, I will over to you, my friend Alicia. Hello everyone. Counseling is a process through which a student know about his career, about his education, what he wants to do in the future. I would like to tell you a little story about a boy named Rahul. He is in 10th standard, and one day his parents asked, "What are you going to do in the future?" He said, "I will become
a pilot, and after 10th I will do non-medical and I will become a pilot. But when his result came, he scored only 60% marks in math subject. So he think that I will take commerce, and after that he will do BCom. By the end of BCom, he came to know about many careers like CA, CS, banking exam, but there was no one to teach him, no one to guide him what to do and what not to do. Here where the counseling needed and where the need of counseling arises. So this is the career counseling, where we provide the counseling to the student by the class of 10th standard only, where his goal will be clear. If we will provide the student to the guidance in 10th standard only, he will be having his more focused goal, that what he will going to do in the future, and he will not look here and there, and he will be determined to his goal. So here we can see there is a career confusion for Rahul. He is having under pressure from the family, and moreover he is having influence from his friends. His friend is taking medical, he is also going there, and moreover there is the influence of media as well. He see many social videos, Come to that point. The main background of our plan is, number one is the strength, weakness and abilities to give support. We go to the Rahul and give him and we will talk to Rahul and found his strength and weaknesses, in which area he is having more strength. How will you find those strengths or weaknesses? By doing counseling. We will have our experts. Counseling experts will go to each and every school, they will tie up with that and will do the counseling of each and every student. Do you have any forma or a questionnaire or something on the basis of which strengths and weaknesses can be judged? Good afternoon, sir. At this, your question is that how will provided our business? Our business will provided and touch up with the schools and colleges at the 10th standard, where the students have lot of confusion. Our council asks to the students, our business will be a council to the students, and our business provide a IQ test, which will be assessment as in this aptitude questions, which can on this base they can check the performance of the students. If they can good performance, so we will provide a roadmap to her. If example of Rahul, that they will be have a knowledge about what to do in a future. So I have a counseling. Our business will be a counseling. Our experts will be a higher. They will be a counsel to the Rahul. What will be their skills and capability, where there is an interest. They will not go here and there. So small IQ test will be provided. They will be give the test, and results will be discussed their parents, because their parents will be forced to that career will be choose, their friends will be choose, or they can pressurize you will be choose the non-med. They can go to 90% in the 10th standard, but her IQ will be not match with that time. So if the IQ test will be provided, so her parents will be also know that children will be at which level they will stand. So on the basis of their skills and capabilities and interest, we will provide a roadmap. In this roadmap, we will not only provide a career counseling guidance, we will also provide the teaching of that at the end of the success. So, how will you hire career counselors? Because there is a shortage of career counselors. You will not find any good career counselors in Jalandhar. How will you start up? I don't think so that there is any good career counselor in Jalandhar. If I have a problem with my child and I want counseling, I will not find anyone. How will you cope up with this problem? We will try to extort these resources from outside Punjab also, because in all India, Mumbai, Bangalore, Chennai, there are very many experts who can do that on minimum fees also. So we will try to. They will be charging very good. we have a proper income statement. We have included our expenses. We included expenses in that. We have hired the experts. We will be having the proper experts, like we have 8 to 10 experts, so they will be working for us only, for app hour only. So we will provide them their fees. The experts will be working for us only. What will be your profit margin? On the basis of commission. How will you set the Number commission? of students. नंबर ऑफ सर इनकम स्टेटमेंट में है, जैसे हमारा एक हेडक्वार्टर होगा जलंधर में, तो हम उसमें स्टाफ मेंबर रखेंगे 4 एक्सपर्ट, 2 ऑनलाइन होंगे और ऑफलाइन भी होंगे. ऑनलाइन में हम स्कूल में ऑफलाइन में हम स्कूल्स में जाके काउंसलिंग करेंगे बच्चों की, कि उससे क्या होगा, एक बच्चे की फीस होगी 350. उसमें क्या होगा, 250 हम एक्सपर्ट्स को पे करेंगे, 100 हमारा उसमें से कमीशन होगा.
एक बच्चे का। सपोज अगर हम एक स्कूल पूरे एक साल में पूरे पंजाब में से 5000 बच्चे कवर कर लेते हैं तो हमारा इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरा, हम टीचिंग साथ में प्रोवाइड करवाएंगे बच्चे को, क्योंकि आजकल डिमांड और सप्लाई हमारी मैच नहीं कर पा रही। जो कंपनीज चाहती हैं वो स्किल्स चाहती हैं, तो वो स्कूल कॉलेजेस में प्रोवाइड नहीं की जा रही। स्कूल्स में ज़्यादातर स्कूल्स में हमें देखा जाता है वो सिर्फ बेसिक कंप्यूटर सिखाते हैं, बट MS Excel नहीं पढ़ा पा रहे बच्चों को, पाइथन नहीं सिखा पा रहे स्कूल्स में इतना। तो वो हम शुरू करवा देंगे अपने 10th स्टैंडर्ड से ही। बेटा आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें योर एक्सपेंसेस एंड इनकम दे आर इक्वलाइजिंग, वेयर इज योर प्रॉफिट? सर प्रॉफिट इज 18,78,000। एक बात बताओ बेटा, why why a person should come to you only? Because ma'am, I have also faced that same problem in our 10th and college life. So main reason is that all Punjab students also go abroad because of they don't have a guidance. उनको क्या करना है लाइफ में, उनके पास अगर रोड मैप ही नहीं होगा पूरा क्या करेंगे, कहाँ तक जाना, कैसे जाना। अगर उनको प्रॉपर ये पूरा एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा स्कूल्स में, कंपल्सरी किया जाएगा ये कि आप काउंसलिंग करवाओ। So it is not an easy task to do compulsory like this. कंपल्सरी बट इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। every year students आएंगे और ये never ending। नहीं, yes it is never ending process. I agree with this. But I think so, you need manpower also, and there are so many obligations. It's not just like you go to principal and you just ask him that we want to do this mandatory or like this. It is not a easier task. Ma'am, moreover schools के बीच में promotion होगी that we have conducted a counseling session for this. Every schools and colleges they don't allow this. Actually they don't allow this. But student need it. We also face the same problem. It's okay. It's okay. Yes, I एक्शन का दूर सब कर रहे हैं, बस नहीं करवाते। हमारे कॉलेज से कई टीचर्स गए हैं स्कूल्स में कि यहाँ की स्ट्रेंथ भी बड़े उनको अच्छा है, कम प्रोस्पेक्ट, लेकिन स्कूल्स वाले एंटरटेन नहीं करते। But we have online service as well. We have online service. सोसाइटीज में कैंप लगाए जाएंगे। नहीं बेटा, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग योर, It is a good idea. वेरी गुड It's a very good आइडिया, idea. बड़ा फ्रूटफुल है और इट इज द नीड ऑफ द आर्ट। बट द थिंग इज कि द कॉस्ट व्हिच वी हैव इन्वॉल्वड इज अराउंड अबाउट 85 lakhs of rupees. How will you start up with such a huge Sir, investment? start up with the initial capital we will funding, and then we have some venture capitals and grants from, and then बेटा फंडिंग ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। starting from our funding. Then and we raise a loan. Second option is loan. If for 85 lakh, we have to 30 lakhs for our capital, 10 lakhs. We have startup, and then we have to take a loan. चलो ठीक है बेटा, Thank you. My next call is for Ritik Kumar and Neha. That's team 3. Ritik Kumar and Neha. A very energetic good afternoon to everyone, respected teachers, my dear friends and respected judges. My name is Ritik Kumar. Myself Neha. Firstly, I would like to thank DAV College for this golden opportunity. तो मैं अपनी जो मेरी जो आइडिया है उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं, अगर CBSE में 2 लाख से ऊपर और IDSE के मात्र 5,000। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT के एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का अगर मोस्टली पेरेंट्स IIT की प्रिपरेशन करने के लिए 10th
के बाद कोटा भेज देते हैं। अमन के फादर एक फार्मर थे और सिर्फ ताकि उनका बच्चा ट्यूशन लेकर IIT क्रैक कर पाए उन्होंने मजबूरन 5 लाख रुपए का लोन उठा लिया। अमन कोटा पहुंचता है, स्टार्टिंग में खूब मेहनत करता है, जो हो सकता है सब कुछ करता है, मगर कुछ ही महीनों के बाद लाख कोशिश करने के बावजूद भी उससे प्रैक्टिस टेस्ट तक क्लियर नहीं हो गई। पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, टीचर्स और ज्यादा प्रेशर डालती है एंड एज अ रिजल्ट ही गेट्स इनटू सीरियस ट्रॉमा। वो जब भी सोता उसे मन से थॉट्स आते अपने माँ बाप का ख्याल आता जिन्होंने उसे अपने खून पसीने की कमाई से लोन लेकर पढ़ने भेजा और देखते देखते विद नो टाइम अमन गोस इनटू डिप्रेशन एंड एज अ रिजल्ट ही फेल्स। क्या मैं दिखाऊंगा मैं अपने माँ बाप को अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, फैमिली पर कितना ज्यादा कर्जा हो गया। और फिर एक दिन जब उसके दोस्त हॉस्टल रूम में घुसकर देखते हैं तो अमन जा चुका था। ही वाज नो मोर। जैसा कि आपने देखा कि अमन इज नो मोर। तो हमारी सोसाइटी में डार्क रियलिटी से जो हमारे एजुकेशन की है 42 मिनट्स में, जब से अगर हमारा एक शो चल रहा है, जब से हमारा आइडिया फंड चल रहा है, 42 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है इंडिया में। गवर्नमेंट जॉब का माया जाल, अगर हम गवर्नमेंट जॉब का माया जाल देखें तो 10 लाख स्टूडेंट्स, अगर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, टोटल नहीं है, 10 लाख PPSC के स्टूडेंट एवरेज ऑन एन एवरेज होते हैं, जहाँ पे सिर्फ 1000 सीटें हैं। और SSC MTS को जिसकी 20,000 सैलरी, वहाँ पे इस साल 40 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, जहाँ पर सिर्फ 7,000 के आसपास सीटें हैं। अगर हम देखें यूपी पुलिस अनाउंस किया था ग्रेजुएट जो कि 5th क्लास के बच्चों के लिए था, वहाँ PhD होल्डर्स ने 4,000 अप्लाई किया था 62 वैकेंसीज के लिए। जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने 28,000। और जॉब की क्राइसिस हमारे इंडिया में कितनी है आप देख सकते हैं। द डेस्परेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ। The situation is so bad that sometimes there is no money to buy books. That is why we thought it was better to get at least a low-level government job than to remain unemployed. one of student ने ये बात बोली है। तो एक रिपोर्ट है जो सेंसस रिपोर्ट के बताती है कि पिछले 2014 से लेकर के 19 तक 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ 7 लाख सीटें थी। अराउंड 47% जो ग्रेजुएट्स है हमारे इंडिया में वो या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर कहने का मतलब कि वो सही पैकेज पे नहीं है, जो कि ग्रेजुएट होने के बाद 10,000 की 12,000 की सैलरी अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली इन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं, वो है किरण क्लासेस। तो किरण क्लासेस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल ले ऑफ हो रही है हमारी कंपनी में, बहुत सारे कंपनीज ले ऑफ कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन हो नहीं पा रही है। किरण क्लासेस क्या हो, इसको मैंने मॉडर्न गुरुकुल क्यों कहा है मैं बताना चाहूँगा। तो हमारा एक टैगलाइन है USP है, नंबर शुड नॉट बी द बैरियर ऑफ योर सक्सेस। जो नंबर है ना हमारी सोसाइटी में, जो कि टॉपर को टैगलाइन देता है, जो लूजर को टैगलाइन देता है, जैसा कि नंबर जो कि अमन था जो डेथ कर गया। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। अब हम कंपनी की डिटेल्स की बात करते हैं। हमारा आइडिया स्टेज क्या है? वी आर नॉट क्रिएटर, वी आर डिफरेंशिएटर इन द मार्केट। हमारा मॉडल क्या है? स्किल बेस्ड एजुकेशन मॉडल। हम एक स्किल बेस्ड एजुकेशन मॉडल लाना चाहते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल गुरुकुल था, जो पहले इंडिया में जो गुरुकुल था, जहाँ पे कोई बच्चा जा रहा था तो हर बच्चे की अपनी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। अर्जुन है तो अगर उसको तीर चलाना आता है, वहाँ पे हर एक बच्चे को अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। हम एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं जिसको स्ट्रेटजी को मैंने बोला है 5 to 7 रूल। 5 to 7 रूल क्या है मैं आगे बताऊँगा। और हमारा जो इनकम कहाँ से होगा, मेनली फीस एंड सब्सक्रिप्शन से होगा। प्रॉब्लम हम क्या सॉल्व करें, जैसा कि हमने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन अमंग यूथ, फाइनेंशियल बर्डन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक। अभी 5 to 7 रूल क्या है बेसिकली? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड फॉलो योर पैशन। 5 डेज हमने सोचा है हम ऐसा क्लासेस इंट्रोड्यूस करें जहाँ पे 5 डेज बच्चे कोचिंग ले सकें। जनरली हमने देखा कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चे सैटरडे को नहीं आते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 5 डेज वो क्लासेस ले सके हमसे, और 2 डेज उनको हम बिजनेस ओरिएंटेड स्किल्स दें। और साथ में मैंने गुरुकुल टर्म यूज़ किया, इसीलिए मोरल वैल्यूज़ भी हमने तो अपने उस मोरल वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करें। तो हम बिजनेस ओरिएंटेड स्किल्स हम क्या ले सकते हैं? अगर मेनली देखें तो जो मैंने एग्जांपल्स दिए वैसे बहुत सारे हैं। टैटू आर्टिस्ट हो गया, नेल आर्टिस्ट, फोटोग्राफी, शेफ, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, ब्यूटी पार्लर, कंटेंट क्रिएटर का बहुत ही काम है, गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा आजकल, कोडिंग, फर्स्ट एड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बेसिक आइडिया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगा, हम वो एक बेसिक आइडिया, रफ आइडिया, नोट कि इसी तरीके से काम करें, बेसिक आइडिया। बहुत एग्जाम्पल कोई हमारे पास ना कॉमर्स का स्टूडेंट आता है, +1 +2 का अकाउंट्स की क्लास लेने हमारे पास। हमें रियलिटी पता है कि जर्नल एंट्रीज से हमें जॉब मार्केट में नहीं मिलने वाली।
बट अगर उस बच्चे को हम 5 डे क्लास देने के साथ साथ 2 डेज अगर हम टैली, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर हम उनको सिखाएं तो वो 2 ईयर में ऐसा हो जाएंगे कि वो खुद का जॉब क्रिएट कर सकते हैं, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है। एक मोरल लेसन जो मैंने बोला था कि वीकली सेशन पे चलेगा। रेवेन्यू मॉडल क्या है हमारा? रेवेन्यू मॉडल क्या है? मॉडल जो हमारा B2C है। अब इनकम कैसे जनरेट करेंगे बात करें तो फॉर आवर स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ 9 to 12 इनिशियली हम 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को कोर्स फोकस करेंगे, कम्पिटेटिव एग्जाम्स पर भी फोकस होगा। वी विल चार्ज फीस ओनली फॉर द क्लासेस, हम सिर्फ क्लासेस के लिए ही चार्ज करेंगे। और जो बिजनेस ओरिएंटेड स्किल्स है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देंगे। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ना इंडिया में कल्चर नहीं है कि बच्चे 5 दिन के बाद हो जाए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे करके उनको चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे पास आए, एक्स्ट्रा में आए। और ऑब्वियसली हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है, हम अपनी उस कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे, उसको एनालिसिस कर लेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल जो हमसे कोचिंग क्लासेस नहीं ले रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है? फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज का बच्चा है, अगर वो 5 डे कॉलेज भी आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को सीखना होता है, इससे उनसे हम चार्ज कर सकते हैं, वो हमसे सैटरडे और संडे को स्किल सीख सकते हैं। अगर हम मार्केट साइज देखें K-12 कैटेगरी का, K-12 क्या है मतलब किंडरगार्टन से लेकर के 12 तक। वैसे इंडिया में जो सबसे मेजर जो इनकम होती है वो K-12 कैटेगरी है, जो कि 52% है। रफली 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, तो मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और जो कि बढ़ते भी जा रहा है धीरे धीरे। मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ, जो कि मेरा कोर्स फोकस होगा, जैसे मैंने बोला था 9, 10, 11, 12, तो हर ईयर 70 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम देने के लिए। मार्केट साइज मैंने एजम्पशन लिया कि अगर 35 लाख बच्चे भी कोचिंग लेते हैं, मतलब 12,000 मैंने मिनिमम, तो 42 लाख करोड़ का मार्केट है। अगर ऑनलाइन भी है तो सिर्फ 2.1 लाख करोड़ का। ऐसे ही अलग अलग बोर्ड में बहुत सारे हैं। हमारा अल्टीमेट विजन क्या है? बेसिकली हम चाहते हैं कि जो किरण क्लासेस है मॉडर्न गुरुकुल का अल्टीमेट विजन क्या है? एग्जाम्पल के साथ हम समझाना चाहेंगे। सपोज देयर इज एक स्टूडेंट है जिसका नाम किरण है, वो हमसे क्लासेस ले रही है और उसका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया या वाइट कलर जॉब नहीं हो पाया, बट उसने हमारे साथ साथ 2 डेज बिजनेस ओरिएंटेड स्किल लिया था। तो वो अब लूजर अपने आप को नहीं फील करेगी, वो डिप्रेस फील नहीं करेगी, वो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकती है। तो हमारा मोटिव सिर्फ एक ये है कि हमारा मोटिव इसलिए वी आर चार्जिंग, और हम किसी बच्चे से फीस ले रहे हैं तो हम उनको इतना एलिजिबल बनाते हैं। हम सबको IAS तो नहीं बना सकते, बट सबको काबिल बनाए। हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम सबको काबिल जरूर बनाए। जैसा कि आज कल के करंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सिस्टम है वो क्या कहते हैं, सक्सेस हमारा, फेलियर तुम्हारा। जो भी बच्चे सक्सेस होते हैं वो होर्डिंग ला के उनकी मार्केटिंग करते हैं और मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है। और जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा KK का, जो मॉडर्न गुरुकुल, ना सक्सेस हमारा ना फेलियर तुम्हारा, हम सब काबिल बने, यही सक्सेस मंत्रा है हमारा। थैंक यू सो मच। Any questions for this? फाइनेंशियल मॉडल कहाँ है? बेसिकली मैम बेसिक मैम फाइनेंशियल मॉडल ऐसा है ना कि जो हमारा KK क्लासेस है मैम, हम इसको ना जिस लेवल पर चाहे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा सबसे अगर इनिशियली अगर फंडिंग मिल गया तो बहुत अच्छे लेवल पर। तो इनिशियली मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने CA फाउंडेशन किया। मेरा पहला प्लानिंग है कि मैं +2 अकाउंट्स खुद संभाल लूँगा, इसको टैली और ERP इसमें CA से सीखा हुआ इसको आता है, वो हम दे देंगे इनिशियली। और CA फाउंडेशन का कोर्स को मैं संभाल लूँगा, मुझे 1 टीचर तक इसका। तो बेसिकली मैंने फाइनेंशियल इसलिए नहीं दिखाया। बेसिकली मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर हमें फंडिंग मिल जाएगी जिसको हम और बड़े लेवल पर भी पहले ही स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस ओनली ना। यस मैम, कहने का मतलब है कि हम ना कहीं से भी स्क्रैच से भी इसको शुरू कर सकते हैं। मेरा वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट हमने सोचा है कि हमारे जो मैंने एवरेज लिया है कि हम एक स्मार्ट बोर्ड लेकर जो हमें कॉस्ट सारी चीज़ें हम EMI पे करेंगे, रेंट वगैरह, तो हमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एंड हम इनिशियली जैसे कि मैंने बोला कि अगर फंडिंग मिल जाए, वेल एंड गुड, फंडिंग मिल जाए तो हम ऑब्वियसली उसको बड़े लेवल पे लॉन्च करेंगे। अगर नहीं मिलता तो हम धीरे धीरे करेंगे जरूर, क्योंकि सोसाइटी की नीड हमें करना जरूर। बेटा आपके कंपटीशन में बहुत ऐसी क्लासेस चल रही हैं मैम। सर कंपटीशन में एग्जांपल खान क्लासेस की हैं। खान सर मैं वही तो बता रहा हूँ हमारे तो मतलब छाया हुआ है। यस सर, खान सर हाउ विल यू कंप्यूट? सही है। मैं ये बोला, जैसे मैंने बोला कि वो मैं 2 डेज क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैंने बोला ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं वो 2 डेज क्लासेस। सभी मैंने सबको देखा, PW, खान सर है सभी, बट वो ना बिजनेस ओरिएंटेड स्किल नहीं दे रहे। रियलिटी क्या है, खान सर सबको जॉब नहीं दे सकते। खान सर अच्छा काम करे, वो बना रहे, बिहार से मैं बिहार से, बट खान सर सबको जॉब नहीं दे सकते। वो जो मैंने फिगर्स पहले बताया था, गवर्नमेंट जॉब का ट्रैप है। आपको वो 2 डेज के लिए लगभग वोकेशनल कोर्सेज अगर करवाने हैं तो उसके लिए यू नीड टू हायर अदर। यस मैम, मैंने बोला धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे मैम। हमने ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट टाइम में हम सबको लेंगे।
धीरे धीरे वी विल ग्रो। चलो अकाउंट्स आपने संभाल लिया, मैं कहती हूँ टेली की क्लासेस उसने निकाली, बट इतनी सारी आपने एग्जांपल्स उसमें बताई थी। अब जैसे रेवेन्यू जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगा, फंडिंग ऑब्वियसली कि मुझे लगता है मेरा विजन है कि आइडिया अच्छा है, मुझे फंडिंग मिल जाएगी, मेरा पॉजिटिव है। तो हम धीरे धीरे जो वो लोग जैसे टैटू आर्टिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में टैटू आर्टिस्ट का बहुत ट्रेंड है, टैटू आर्टिस्ट है, तो हम उनसे कोलैब करेंगे कि आप हमारे पास ही हमारी कंपनी का पार्ट बनिए और हम आपको फीस देंगे, बच्चे के अकॉर्डिंगली हम आपको देंगे। उनको भी मेरा दो कॉन्सेप्ट था, वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस था ना उनको देने का दो सिर्फ यही मोटिव नहीं था कि मैं एक मोटिव ये था हमारा, सॉरी एक मोटिव ये था कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर है हमारे इंडिया में ना, जैसे इंडिया से जो बच्चे बाहर जाते हैं आपसे यहाँ से, मेरे जो फ्रेंड्स गए हुए कनाडा, वो 5 दिन कॉलेज जाते हैं, 2 डेज वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे काम करके प्राउड फील करते हैं। तो यहाँ पे उस काम की वो डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, हम वो कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स अगर कोई सिखा रहा है हमारे बच्चों को, तो वो उनको सर बोलेगा, और जब भी किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले को देखेगा तो उसका फीलिंग है कि वो सर है हमारे। तो बेसिकली डिग्निटी ऑफ लेबर को भी मैं लाना चाहता हूँ। और रही बात की फंडिंग, स्किल इंडिया को चलाने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारा मतलब कर रही है, तो हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा। Thank you so much. My next call is for Taruna, Vibhu and Nisha, that's team 4 judges. Team number is what? Team 4. बच्चे बैठिए प्लीज। जाओ ना, आप चले जाओ। आप जहाँ पे लोग वो तो चले चलो मैं चाहती हूँ कहाँ देख रहा हूँ। Food is not rational. Food is culture, habit, craving, and identity. A very warm good afternoon to respected teachers and dear students. I, Nisha, I, Taruna, And I will do of BCom final year, going to represent a business plan basically based on food truck. Well, our food truck deal with the two types of cuisine. First of all, Punjabi food cuisine, and second is Italian. So, first है introduction. जो introduction में जो हमारा main है कि हम mostly focus करें ट्रक मतलब फूड जो ट्रक के ऊपर फोकस होगा। ओवरऑल जो हमारा होगा कि हम बेस्ट प्राइस में सॉरी अफोर्डेबल प्राइस एंड क्या कहते हैं बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकें। और जो फूड है वो मतलब इजीली मतलब ऐसा फूड कि कोई मिडिल क्लास बंदा भी खा सके, क्योंकि जो फूड अगर हम रेस्टोरेंट या अलग अलग फूड ब्लॉगर का अगर ब्लॉग देखें तो वो चार्जेस बहुत ज़्यादा है, बट हमारे में हम मतलब सफिशेंट रख रहे हैं कि कोई भी कंज्यूम कर सके। सेकेंड इज प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है हमारे 2 बेस पे है, एक है फर्स्टली है पंजाबी भी फूड है, सेकेंड है इटालियन। पंजाबी में हमने मेन जो हमारी डिशेज है वो बेस्ड ऑन पंजाबी कल्चर है। सो जैसे कि कड़ी चावल नान एंड सो ऑन। और बर्गर जो इटालियन के बेस पे है, बर्गर को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, जैसे कि हेल्थी एंड थोड़ा मतलब जो जनरल मार्केट में मिलता है। उसके बाद जो फूड आइटम्स ये लिस्ट है, सारा मेन्यू है, ये मतलब पंजाबी में ये है और इटालियन में ये है। हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ द बिजनेस कि आगे से कैटेगरी डिफाइन करती है, सेम वही जो पीछे मेन्यू में था कि क्या 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 स्पेशल मतलब हमारे को मिल रहा है।
मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जैसे हम सबसे पहले करेंगे यूनिक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली लीवरेज लोकल इवेंट्स एंड गैदरिंग, हम आसपास के सारे लोग इकट्ठे करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे। ऑफर लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी हम करेंगे, ऐप करेंगे जहाँ से हमारे हम सर्विस प्रोवाइड करें, और यूनिक मेन्यू हमारा डिफरेंट तरह का होगा। फ्यूचर प्रॉब्लम जो हम सबको फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है, कोई भी प्रॉब्लम एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर या न्यू बिजनेसमैन को आ सकती है। सेम एज हम भी ट्रक बिजनेस हमारी सिटी में फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ओवरऑल इंडिया में ये ट्रेंड काफ़ी फेमस है, बट इन जलंधर ये इतना ट्रेंड पे नहीं है। तो अगर फ्यूचर प्रॉब्लम की बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि लोकेशन का हो सकता है कि हमको एग्जैक्ट लोकेशन ना मिले कि कहाँ पे वो वर्क करें। सेकेंड है कॉम्पिटिशन, आज के टाइम में मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना है कि एक ब्रांड एक कोई भी ब्रांड हो गया उसको मतलब कॉम्पिटिट करने के लिए और कोई इनोवेटिव आइडिया क्रिएट हो जाता है। सेकेंड है कॉस्ट, मेन है सबसे मोस्ट ये मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है। तो कॉस्ट मुझे लगता है कि हम थोड़ा कॉस्ट पे हमको वर्क करना पड़ेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हमारी जो हमारा वर्क है वो इनकम कहाँ से आएगी या कॉस्ट हमारी मतलब एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाएगा। इनकम जैसे हम सेल की जो रेवेन्यू होगी उससे हम जनरेट कर सकते हैं। कैटरिंग हो गया, मर्चेंडाइज, मतलब इसमें हम जैसे अलग अलग हम अपने ब्रांड्स की आइटम्स की शर्ट्स वगैरह देंगे कि हमारा ब्रांड ऐसा है, शर्ट्स टी शर्ट्स। जैसे कि जो जोमेटो ब्रांड है उन्होंने अपनी जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं वो मतलब उनकी ब्रांड को रेक्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, फूड एंड बेवरेज कॉस्ट, जैसे हमारा खर्चा कॉस्ट फूड बनाने में क्या क्या लग रहा है, लेबर कॉस्ट अगर हम ऊपर कुक रखते हैं तो उसकी सैलरी कितनी है, तो उसके बाद ट्रक एक्सपेंसेस हमारा जो ट्रक खरीदना पड़ेगा मेनली, और रेंट वगैरह अगर हम जहाँ पर लगा रहे हैं उसका चार्जेस पे करने पड़े, और लास्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा हमारे को फूड बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है हाउ आवर आइडिया इज इनोवेटिव। मेन और मेजर जो एम्फेसिस है मेरा हमारी टीम का कि डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि कस्टमर जो कंज्यूम कर रहा है हमारा फूड उनकी उसकी हेल्थ को कोई हार्म ना होना इन्वायरमेंट को, और अलॉन्ग विद मेन उसका इनिशिएटिव ये भी है कि हमको मतलब लेस से लेस कॉस्ट पड़े। तो उसके लिए हमने एक सब्स्टिट्यूट निकाला कि जो अगर जो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं हम उसको साइड पे रखें, जो लीफ बेस्ड प्लेट्स होती हैं उनको हम करें। तो अगर ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब लग सकता है स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव है, बट मुझे लगता है कि फ्यूचर में एज ए इनोवेटिव आइडिया की तरह काम करेगा। अगर प्रोसेस को समझा जाए जो मतलब लीफ को कलेक्ट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो इसके लीफ है कि ड्राई लीफ मतलब जो ट्रीज के जो लीफ है वो गिरे होंगे, मतलब कोई गार्डन या कोई जो जहाँ पे बहुत बाहर कह लो कि जहाँ पे मतलब वो उगते हो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको वॉश करके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड आर्टिफिशियल बेस से उसको सुखा के अदरवाइज जब हम उसको यूज़ कर लेंगे देन डिस्पोज करके हम अगेन मतलब अपने डिस्पोज करके जो मतलब फिर हम एज अ खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा ये कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो घूम फिर के हमारे पास ही वापस आ रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे पास एक फूड प्रोडक्ट जो घर से बना के लाए हैं नेचुरली, क्या हुआ पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा एज अ पंजाबी स्टाइल, जैसे मर्जी आप टेस्ट कर सकते हैं। चलेगा कितने दिन चलेगा आपका? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा। बात ये है कि आउटलेट खुलता है, 2 दिन जाते हैं लोग, तीसरे दिन वहाँ कोई नजर नहीं आता। भाई वो स्टार्टिंग में हो जाता है, खाने पीने में स्टार्टिंग सक्सेस इज देयर, बट फॉर लॉन्ग रन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। यस सर, इसीलिए हम शॉर्ट अभी हम सिर्फ फूड ट्रक पे जा रहे हैं, बाद में हम शॉप पे अगर हम सक्सेसफुल हुए तो तब हम शॉर्ट। ये तो सारे ही करते हैं। यस रादर कई बार ऐसे भी देखा है जो ट्रक में हमको सक्सेस ज़्यादा मिल रही, जब उन्होंने शॉप पे कन्वर्ट किया तो गए। हम अपनी प्लेस चेंज करेंगे, अगर यहाँ पर कस्टमर नहीं मिल रहे तो कहीं और से ट्रैक करें। वैसे हमने मेन लोकेशन वहाँ पे रखी जहाँ पे मतलब टूरिज्म पॉइंट ज़्यादा हो, तो जैसे कि नियर बाई देवतला मंदिर वहाँ पे मतलब जैसे अनदर स्टेट से हो गए या इवन फॉरनर भी मतलब विजिट करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा सबसे मुझे लगता है कि वहाँ पे काम करते हैं। जैसे तुम 3 लोग हो तो आपने कैसे डिवाइड किया है मतलब इस काम को, कौन कौन क्या काम करता है? मैम जो शेफ रखेंगे जो मतलब जिसमें जो हमारा ट्रक है ना उसमें 2 विंडोज होंगी, जैसे रेक्टेंगुलर शेप होती है
एक साइड पे हमें वैसे डिज़ाइन करना है कि पंजाबी कल्चर शो हो, बट जो दूसरी साइड है वहाँ पे हम शो करेंगे जैसे यंगस्टर्स आते हैं इटालियन फूड खाने के लिए, तो एक विंडो पे ये या मैं होंगी तो दूसरी विंडो पे ये, और जो हमारे शेफ़ है जैसे हमने पंजाबी फूड रखा है तो वो सब चीज़ें प्रिपेयर करेगा, और जो हमने इटालियन फूड रखा उसमें है हमारे पास राज कचौड़ी, तो वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, वो मतलब हम भी दोनों कुकिंग करते हैं घर पे और ये भी हमने बनाया है। होममेड है, मम्मा के घर से बनवाया है? नहीं सर, बट ये रेसिपी आती है। हाँ जी, तो फिर हम ऐसे कुछ मैनेज करेंगे, इसके लिए हमें एक शेफ को रखना पड़ेगा। हमारे कस्टमर को इधर ही मिल गए। मुझे लगता है ये तो ठीक है। तो मैम बेसिकली ना जो हमारे मतलब पूर्वज का कहते थे कि अगर किसी का दिल जीतना है तो उसको पेट दिए मतलब रास्ते से गुजरना होगा, तो हमने सोचा कि अगर हम ये काम शुरू कर ही रहे हैं तो ऐसा मतलब ट्रायल बेसिस पे हम अपने हाथ का स्वाद कह लो, मतलब हम चेक करा लें कि हम इस काबिल है कि नहीं। तो ये एक छोटा सा ये इनिशिएटिव था, बट ये ओवरऑल खाने पीने में तो बहुत है, और आपको कंपटीशन में को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर कोई जो है नया वेंचर शुरू करता है तो इसी फील्ड में आता है। मुझे जाकर ये दिखा इटालियन ही मिलता है, दोनों कंबाइन करके बनाया, और ये हमने टारगेट किया हमने ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं बढ़ाई है, नेचुरली रखे हम ज़्यादा कस्टमर बेयर कर सके उतना कॉस्ट रखें, ज़्यादा आगे रखें जब हमारा प्रोडक्ट करो ये करके ना सबसे पहले डीएवी कॉलेज के अंदर आ जाना, पहला आउटलेट डीएवी कॉलेज में शुरू क्लाइंट मिल जाएंगे। कॉम्पिटिशन तो है मेनली प्राइसेस का, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने सेलिब्रेशन नहीं बेटा, कई बार ऐसे भी होता है कि ज़्यादा सस्ता खाना नहीं मिलता, नहीं मिलता, सोचते हैं कि क्वालिटी कम हो। हमने रेट इस तरीके से सेट किए हैं कि मतलब उनको ये ना लगे कि वो ज़्यादा महंगा है, ये ज़्यादा सस्ता है, मतलब ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल प्राइस है हमारा। Thank you guys. My next call is for Aditi and Shruti. That's team 6. Two teams. इसके बाद कौन है? नेक्स्ट कौन है? The next team is Neeraj, Kajal and Sneha. बैठे हुए ये बंदा? Yes. Please maintain the decorum. Very good afternoon to everyone. So, first of all, I would like to thank DAV College, जिन्होंने हमें ये opportunity दी to present our business plan. So, at first, we are from Team Ash. Ash means Aditi and Shruti. So, my name is Aditi, and my name is Shruti. So, we guys are presenting a business plan named as Castello di Saracino, the taste of Italy. It is basically a restaurant जो हम लोग इस वक्त पे चाहते हैं ओपन करना. We have this full-fledged plan with us जिसको हम in coming months हम ओपन करेंगे. हमारे goals and objectives में भी ये अवेलेबल है. So my name is Aditi and हम लोगों को ये experience almost 1.5 year का है इस field में. As in मैंने 6 months पहले as an intern Subway में काम किया था. And in the year 2018, I have pursued my BCom in APJ College. तो वहाँ से मेरे को एक offer आई थी. There I joined as an intern. वहाँ पर I have grasped a lot of knowledge related to the management, then operations, as well as the customer building relationship. As well as Shruti has a very well-renowned business family. My maternal family has a well-known cafes and sweet shops in Model Town. So I have gained experience
from them also. Daily Dose, Nagpa's Daily Dose and Sweet Shop, Sergeant Sweet Shop. So from that I have gained a knowledge about managing the cafes and restaurants. Plus we are right now running a very small business, we can say. We are a home baker and on an average we earn 2000 per day. एंड दैट इज़ लाइक हमारे जो हैं दो अलग अलग घर हैं. डेफिनेटली ये वडाला चौक रहती है और मैं सिटी पंचन कॉलोनी. हमारा कस्टमर बेस इज ऑफ 100 to 200%. एक्चुअल जो इस वक्त पे एग्जिस्ट करता है, वी हैव अ, जो सारे बैठे हैं प्लीज़ फॉलो कर लेना इसको. वी हैव अ वेरी नाइस blogger page, Tempting Bites, and on that we promote different businesses also as well as our business which is for baking. So our page has around 15.3k followers. जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज इसको फॉलो कर लेना. कमिंग बैक टू आवर प्लान, सर आवर बिजनेस रिव्यू इज कास्टेलो. द ओवरव्यू इज जो कास्टेलो द सेराचिनो है, ये हमारा एक 2 लाइन रेस्टोरेंट होगा. इसमें क्या होगा कि हम लोग सारी आइटम्स प्रोवाइड करेंगे जो इस वक्त पे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. लाइक वी विल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्तास. हम लोगों ने स्पेगेटी खाया होगा, पेने खाया होगा, fusilli pasta most खाया होगा. But we will also provide the fettuccine, raviolis. Then we have cavatelli. So हमारे पास अलग अलग वैरायटी है पास्तास की जो एक हाई क्लास जो है रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंट बनाती है, जो हमें एज कम्पेयर टू बाकी रेस्टोरेंट से आउटलेट से हमें डिफरेंट बनाती है. बिकॉज ये अभी तक जलंधर में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं आइटम्स. हमारी एक स्पेशल आइटम और है चीज़ व्हील पास्ता, जो कि इस टाइम पे जलंधर में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है. वी हैव अ पास्ता चीज व्हील जिसके ऊपर हम लोग पास्ता बेक करके जो है वो लाइव बना के देते हैं. प्लस लाइव पास्ता, लाइव काठी रोल्स, लाइव कबाब तो सबने देखे होंगे, बट लाइव पिज्ज़ा बनता हुआ किसी ने नहीं देखा होगा. हम लोगों ने अपने रेस्टोरेंट में ना एक इंटीरियर डिज़ाइन जो अभी इसमें लगाया हुआ है, हमारे पास एक प्लान है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको लाइव पास्ता बना के दे रहे हैं. कस्टमर्स को हम कह रहे हैं आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज पास्ता भी बना के दे सकते हो, पिज्ज़ा भी बना सकते हो. उनकी टॉपिंग्स, उनकी जो लाइकिंग्स है वो खुद बना सकते हैं, सो दैट वो एंगेज रहे हैं हमारे बिजनेस में. सो ये जो इधर वाली साइड है ना, जो जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, ये लाइव काउंटर होगा हमारा पास्ता पिज्ज़ा का. दिस इज आवर वुड ओवन पिज्ज़ा मेकर. यहाँ पर हम लोग खुद बेक करेंगे, इधर वो लोग अपनी क्रिएटिविटी करेंगे, वेदर इट्स किड्स, वेदर इट्स सीनियर सिटीजन्स, वो सारे अपनी क्रिएटिविटीज यहाँ पे शो करेंगे. मिशन एंड विजन. हमारा मिशन क्या है कि हमने अपना फ्यूजन गॉर्मेट फूड जो है वो नई और पुरानी, दैट इज जो सीनियर सिटीजन है उन जनरेशन को भी दिखाना है. एंड विजन हमारा ये है कि हम लोग एक ऐसा संसार देखते हैं जहाँ पर हम लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर इक्वालिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं. अगर सीनियर सिटीजन आए हैं तो उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा एंड दे विल लाइक दैट एम्बियंस. वी आर हेयर टू प्रोवाइड द एम्बियंस जो सीनियर सिटीजन के लिए मेन हो. नेक्स्ट, सो दिस इज आवर स्वॉट एनालिसिस. हमारी सर्टेन स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये हमारे सर्वे के बेसिस के ऊपर हमने ये स्ट्रेंथ्स करी हैं. प्राइसिंग पावर, डिफरेंट कुजीन्स ऑफ, ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो हमारे बेकरी बिजनेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड उन्होंने एक्चुअल में हमें मोटिवेट किया है कि हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं. नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़. सो ये अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. मार्केट गैप को हम लोग कवर कैसे करेंगे? हम लोग मार्केट को ऐसे कैप्चर करेंगे क्योंकि हमने अपना मेन्यू डिस्टिंक्ट रखना है. हमारे पास जिस मर्जी रेस्टोरेंट में चल जाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन्स अवेलेबल हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई कुजीन ऐसा नहीं है जो टॉप ऑफ इट फाइनल टेस्ट सही दे. ठीक है, टेस्ट नहीं है. एंड मार्केट गैप में हम लोग मेन्यू आगे डिस्कस करेंगे. हमारा मेन्यू भी है. सो दिस इज आवर प्रेजेंट मेन्यू. सब कस्टमर्स में 69% कस्टमर जो सर्वे हुआ है, 69% के जो जलंधर के कंज्यूमर्स हैं वो अपना पैसा जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के ऊपर खर्च करते हैं, बट उनको वो चंडीगढ़, वो दिल्ली, वो मेट्रो सिटीज़ वाली वाइब यहाँ पर जलंधर में अवेलेबल नहीं है. एंड हम लोग वो वाइब यहाँ पे लेके आना चाहते हैं. लोग जाते हैं यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उनको जलंधर घूम के दे आर वेरी बोर्ड विद इट. सो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बाज़ार है, जो हमारा मार्केट इंडस्ट्री है, वो जलंधर में एक अच्छी चीज़ लेके आए, डिफरेंट. कॉस्ट में क्या होगा कि हम लोग जो अपनी प्राइम कॉस्ट है वो रिड्यूस करेंगे.
ठीक है, एंड फिर हम लोग कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइसेस जो है वो अवेलेबल करवा पाएंगे। देन टारगेट मार्केट खर्चा कर रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि रीजनेबल प्राइसेस पे आप मैम जैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे जो हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट्स है एट प्रेजेंट वो बहुत ज़्यादा महंगा स्टफ दे रहे हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करेंगे एंड उनको वो सेम क्वालिटी रीजनेबल प्राइसेस पे देंगे। हमने मेन्यूज़ के ऊपर अपना प्राइस पे लिखा है। हम लोग स्टूडेंट या कॉलेज गोइंग बच्चों की बात नहीं कर रहे जो मतलब जिन्होंने 60 या 70 रुपये खर्चने हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिलीज एज वेल एज नहीं, यूथ भी है हमारे पास। हमारी जो लोकेशन हमने डिसाइड करी है वो हमारी है एपीजे कॉलेज के पास, सो न्यू जवाहर नगर जहाँ पे लापी मार्केट सर उसके बारे में बताया। हीट 7 अब सर बिल्कुल खत्म हो रहा है, मतलब इवन हम लोग भी एपीजे में थे तो हमने ये So we don't find any good place for hangout. वो भी तो इसके सामने ही है So but the ambience and the prices is too high there. So we are concentrating on prices that we can afford, that students can afford that, because APJ they are up students, they can standardized students जो they है can वो कर सकते हैं। They can spend मतलब 1000 to 1500। हम वैसे एवरेज ऑर्डर हम लेके चल रहे हैं 600 रुपीज़ का, कि एवरेज ऑर्डर हमारा 600 रुपीज़ का होगा। आई गेस कि हर स्टूडेंट जो है एपीजे कॉलेज में जो भी हैं, हम लोग क्या करते थे, हम कॉन्ट्री करते थे 200 रुपीज़ पर कॉन्ट्रीब्यूशन होती थी एंड हमारी जो डिशेज आती थी उस पर टेस्ट करते थे एंड वी यूज टू एंजॉय दैट मोमेंट। So this is how we are going to supply our help. Target market: children for birthday parties, then youth, senior citizens and family dinings for get-togethers. suppliers. So these are our suppliers जो हमें supply करेंगे at wholesale prices. Tiger Enterprises are in New Vegetable Market. फिर उसके बाद Home Enterprises है, Chawla Enterprises है, ये हमें अलग अलग products जो है वो provide करेंगे। Next, मार्केट समरी। हाई डिमांड की वजह से हमारी जो पोजीशन है वो हम लोग जैसे इटालियन कुजीन की ना डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट इटालियन ऑथेंटिक और इटालियन टेस्ट कोई रेस्टोरेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग अपने आप को 1 साल के अंदर टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में देख रहे हैं। जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, विच कॉम्पिटिटर्स सर मैम वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। देन मार्केट ट्रेंड्स जो है वो हमने देखा है पिछले 10 सालों में भी देखे। जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा हाइकअप लिया है। सो वी आर प्लानिंग कि हमारा भी ये जो है वो एक हाइकअप लेके जाएगा। नेक्स्ट, मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ऑनेस्टली देखा जाए, वी हैव मॉल टाउन रेस्टोरेंट्स एज वेल एज Olive Grill, they are serving authentic foods, and so they are our competitions. सो नेक्स्ट वी हैव कि वहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम दिखी है, उन रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम्स दिखी है। तो वहाँ पे क्या है, एक्सेसिव टाइम लिया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। पहले पार्किंग प्लेस नहीं अवेलेबल होती मॉल टाउन एरिया। सेकंड, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो फूड टाइम पे सर्व नहीं करते हैं। सो वी हैव, और टाइम में क्या है कि हम लोग अपने कस्टमर्स को एंगेज करेंगे जिनसे उनको टाइम का शायद कुछ अंदाज़ा ना रहे। मतलब एंगेज की लाइव कस्टमाइज पिज़्ज़ा वो अपनी टॉपिंग्स का वो बनाएंगे, ठीक है, वो खुद बनाएंगे। दे विल एंजॉय दैट, उनको एक पर्सनल स्पेस दिया जाएगा इस चीज़ के लिए। देन हम बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस देंगे। हमारे पास वहाँ पे निक बेकर्स ले लें हम, चाहे कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ ले लें, वहाँ पर प्राइसेस डिशेज स्टार्ट 400 रुपीज़ से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मिसिंग इटालियन टेस्ट। जितने रेस्टोरेंट्स में आई हैव विजिटेड एंड शी हैज़ विजिटेड एज अ फूड ब्लॉगर, हम लोगों ने देखा इटालियन टेस्ट ऑथेंटिक है, वो नहीं आता। टीम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, टाइम्स अप, प्लीज quickly wind up. Okay, so next, APJ कॉलेज एंड APJ स्कूल प्लस जो वहाँ पे रेजिडेंट्स एंड ऑफिस प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या है, उनका आउटगोइंग ज़्यादा है, प्लस वहाँ पे सॉलिड अटेंडेंस है इवन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। सो वी आर थिंकिंग कि वो हमें अप्रोच करेंगे फॉर श्योर इफ अट्रैक्टेड, इफ दे आर अट्रैक्टेड। देन वी हैव मार्केटिंग प्लान के लिए हमारे पास है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। देन वी हैव सेल्स प्रमोशनल टूल्स। जैसे इनॉग्रेशन पे हम लोग करेंगे कि एक सरप्राइज गिफ्ट टू द कस्टमर्स जिन्होंने एक ऑर्डर किया है, उनको एक सरप्राइज गिफ्ट हमने कॉफ़ी कर देंगे या एक पिज़्ज़ा कर देंगे ऑफर, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट।
देन एनिवर्सरी स्कीम्स एंड गो बाय वन गेट वन ऑफर्स ऑन ट्यूजडेज फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग अपनी स्कीम्स लेके आए थे। चल रही है आपका? यस। ऑपरेटिंग प्लान में हमारे पास है कि हम लोग परचेज होगी या फिर मार्केटिंग होगी वो हम लोग खुद हैंडल करेंगे, ठीक है। देन वील हैव हायर वन हेड शेफ, वन जूनियर शेफ, 2 cleaners, 2 waiters and 3 helpers. I'm sorry to interrupt again. Can you please wind up fast? Next slide. Oh yeah. So our expected investment is 35 lakh and estimated profit पीछे था estimated income statement and estimated profit है हमारा 12,96,000. Gross profit है कि net profit है? So this is net profit before tax and interest. So हमारी return on investment क्या आ रही है? That is 34.17%. Thank you very much sir. एक मिनट पीछे करते बस. So sir ये हमारी इनकम है, हमने 86, ये पूरी एक साल का एस्टिमेटेड इनकम है. We are expecting at least 40 orders every day, average on an average, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं. And to be honest, Nick Bakers का there are 200 customers orders per day. Yes, so we are starting with 40 orders per day and पूरे साल का बना के it will be 86,40,000. No other income, just हमारा ये financial plan जो है उसके लिए है. And these are our costs and total expense will be of 71,48,000 by the end of the year. सर कि आपकी इन्वेस्टमेंट अभी 35 लाख की है? Yes, yes मैम. फॉर एग्जांपल मैं आपको 35 लाख मैं दे देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि लाइक आपने कहा कि आप इटालियन रेस्टोरेंट जो है बहुत अच्छा खोलेंगे. देयर आर सर्टेन इटालियन रेस्टोरेंट्स इन जलंधर इटसेल्फ, लाइक जोका इज यान्स इज यस. देन दैट मीन्स कि मतलब व्हाट डिफरेंट यू आर गोइंग टू डू? यस मैम, जैसे जोका है, जोका का अगर हम मेन्यू खोलें तो सिर्फ उसमें इटालियन नहीं है, उन्होंने बाकी कुजीन. हाँ, स्पेगेटी क्लब में उन्होंने सिर्फ नाम स्पेगेटी रखा हुआ है. टू बी ऑनेस्ट उनका जो बेस्ट सर्व है दैट इज बाउल, जो वो चिकन बाउल है या फिर पनीर बाउल है वही उनका ज़्यादा बेस्ट सर्व चल रहा है. बट उन्होंने शो इटालियन करा हुआ है, हम इटालियन शो भी करेंगे प्लस हमारा इटालियन ही होगा. हमारा मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे मैम. ऑथेंटिक टेस्ट है. इटालियन जो भी कुजीन होता है ना उसमें कभी नमक नहीं डलता एट फर्स्ट, वो खुद पका जलंधर में फिर वो बिल्कुल इटालियन चलाने में मुश्किल हो जाएगा. लोगों का टेस्ट हम बिल्ड करेंगे वो टेस्ट. अगर आएगी चीज़ तभी जाएगी. चाइनीज जब शुरू में आया था लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था, अब लोग प्रेफर ईटिंग यस सर. वो हम लोग अपने कस्टमर्स को ये नहीं बिल्कुल नमक नहीं डाल के देंगे. केक्स एंड ऑल ये हम अभी आपके लेके भी आए हैं. सर मैम हमारी प्राइसिंग डिफरेंट है. हम जोका जाए इनके प्राइसेस बहुत हाई है. मैम ये हमारा पूरा एक ना साल का प्लान है. इस वक्त में हम लोग फरवरी में हमने प्लानिंग स्टार्ट करी. मार्च में हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे जो फोकस ग्रुप्स होंगे हम लोग अपने डेट और इक्विटी दोनों रखेंगे. तो इक्विटी में हम लोग दोनों इन्वेस्ट करेंगे प्लस हम डेट में लोन लेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ दिस अगस्त हम लोग अपना लॉन्च डिज़ाइन प्रेफर करेंगे. देन फीडबैक लेंगे विद कस्टमर्स, फिर उसके बाद हम क्लाइंट्स को डिलीवर कर देंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो दिस इज आवर प्लान. अगर हमें फंडिंग मिल जाती है एट फर्स्ट, अगर हमें डेट मिल जाता है. अच्छा गर्ल्स क्विकली प्लीज. हाँ सो सर आप प्लीज आओ. So this is our new launch dish. This is our new launch dish. इस डिश का नेम है टिरामिसू केक. मैम पटकते मार दो. यस साइड से. मैम दिस इज अ टिरामिसू केक जो हमने अभी अपने बेकरी प्रोडक्ट्स में भी ऐड ऑन किया है. आज न्यू लॉन्च भी है और ये हमें आज यहाँ पे प्रेजेंट करना सर.
मैम ये सारा होममेड है। यस यस, ये भी एडिबल है, चॉकलेट। फिर हमारा अदिति एंड सुनील टेम्पटिंग बाइट्स। Yes, 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 we have. So you can order on our page, Tempting Bites. And on last side we have email and number also. Yep. Thank you very much. Okay, thank you so much. My next call is for Neeraj, Kajal and Sneha. That's team 7. इसके बाद लास्ट After this one, last team. Please guys start. आपके पास है PPT? Sir, actually this is all about गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये चाय के बारे में है। जैसे कि मैम आपको भी पता है, सर आपको भी पता है कि यहाँ जलंधर में ऑल ओवर इंडिया में कितने चाय पूछ चुके हैं, यानी कि बहुत सारे पूछ चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक वो नहीं सोचा जो मेरी टीम ने या फिर मैंने थोड़ा वो किया है। सबसे पहले कईयों ने फ्लेवर खोल लिए चाय के कि काफी चाय के फ्लेवर्स आ गए हैं, कईयों ने कुछ स्नैक्स ऐड कर दिए उसके साथ, बट मेरा कुछ यूनिक आइडिया है। ऐसा है मैम कि अभी मैं शिलोंग में जाके आया हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि चाय की जो डिफरेंट ही मेथड है वहाँ बनाते ही बहुत अलग तरीके से है, और वो यानी कि उनका जो चाय की टी सीड्स हैं और यानी कि उनका बनाने का जो मेथड है वो बिल्कुल ही अलग है। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि एक जैसे शॉप खोल के एंड उसकी फिर ब्रांचेस, और अगर वो चलता है इन बिटवीन फ्यूचर में, अगर वो काम कर जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे एक ब्रांच खोले पहले जलंधर में, यानी इट विल वर्क। अगर वो चलता है तो फिर ऑल ओवर पंजाब में, देन ऑल ओवर इंडिया में। तो मैम प्रोजेक्ट ये है कि जैसे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की, डिफरेंट स्टेट की उनकी सीड्स जो होते हैं, चाय पत्ती जिसको हम कहते हैं, वो लाके अपने ही वहाँ पे जलंधर में तो उनको एक्सपोर्ट किया जाए, देन उनको उसी की मेथड में बनाया जाए जो कि यहाँ पे रहते हुए, हमारे जलंधर में ही रहते हुए लोगों को उनका स्वाद आ सके, उनका टेस्ट आ सके। तो मैम यही है बिजनेस प्लान। एंड तो हमारे जो नाम है उसका बिजनेस प्लान का इंडियन डिलाइट टी, तो ये मैम शॉप का नाम होगा, एंड जो प्रोसेस है उसका नाम होगा इंडियन डिलाइट टी। इसमें मैम रिक्वायरमेंट यही है कि मैम एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से एक मोर आउटपुट आ सके।
तो मैं सर यही है इसका, यानी कि अपना जैसे मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी आउटपुट को देखूं, यानी कि लोगों की फुल नीड्स को पूरी कर सकूं। सबसे पहले मैम लोगों की नीड्स को ये होगा पूरी करना कि वो अपने यहाँ पे रहते रहते ही अपनी वो दूसरे टेस्ट यानी कि दूसरे चाय की टेस्ट को पूरा कर सकेंगे, यानी कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। यानी कि मिडिल क्लास फैमिली भी जैसे रेट्स मैंने रखे हैं इसके, स्मॉल रखे हैं, यानी कि स्मॉल रखा है, लार्ज रखा है, फिर रेगुलर साइज रखा है उसका साइज का कप का जो की होती है। तो मैम यही कहने का मतलब है कि जैसे बिल्कुल अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रह के अपनी ही जगह में रह के वो डिफरेंट डिफरेंट जगह की चाय को फ्लेवर कर सकते हैं। एंड मैम इसका जो मैम ये हमारा लोगो है उसका, ये हमने जो रखा है मैम मेंबर्स ऑफ द टीम हम तीनों ने जैसे डिसाइड किया था कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैम जो दूसरे लोगों की फुलफिलनेस को पूरी कर सके बिजनेस उसी को कहा जाता है। तो मैम वही चीज में देखते हुए हमने कहा कि अगर कोई चीज को जैसे हम पूरा कर सके तो फिर जैसे डी है तो उसी को हमने लिया, देन उसके रिलेटेड पे बात करी। देन मैम इसकी जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 10 लाख से हमने सोचा है जो कि ये आउटपुट भी दे सके। एंड मैम लास्ट में मैम यही कहना चाहूंगा जैसे 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस की हमने और डिफरेंट स्नैक्स भी उसके साथ हम देंगे। जैसे रेगुलर आप जाके पीवीआर चले जाओ वहाँ पे नॉर्मली आपको यानी कि क्लासेस के साथ स्नैक्स दे देते हैं या कुछ और देते हैं। तो मैम मेरा मेन मोटिव यही है कि लोगों की जो फुलफिलनेस है उसको पूरा किया जाए, उनकी जो नीड्स है उनको पूरा किया जाए, ना कि ये कि इनपुट देके आउटपुट बाहर निकाला जाए। एंड मैम लास्ट में मैम ये बताना चाहूंगा कि यही है मेरा बिजनेस प्लान हम तीनों का कि हम आगे हमें इन्वेस्टमेंट करके तो पूरा कर सकें। सर ये बहुत तरह की होती है सर, बहुत तरह, जैसे असम की स्पेशल, मेघालय की स्पेशल, दार्जिलिंग की स्पेशल, असम मेघालय की स्पेशल, केरला कोल्ड की स्पेशल, सर बहुत तरह की चाय। नहीं वो आज तक किसी ने ये किया ही नहीं होगा मैम एक्चुअली जैसे हम अभी जाते हैं, हम जलंधर भी देख लो मैम जलंधर में जाते हैं मैम सिर्फ फ्लेवर्स मिलेंगे हमें कभी ये नहीं दिखा कि आसाम की स्पेशल, दार्जिलिंग की स्पेशल। बेटा हमें सीखिए बनानी है सर वहाँ सीखिए सर, वहाँ सीख के आए हैं, 10-15 दिन वहाँ लगा के आया हूँ मैं। तो वहाँ सब कुछ जैसे उनका मैटर मैम जैसे हमारा यहाँ पे मैटर ये है कि जैसे उबाल के वो चाय को बनाना, पर मैम वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे पहले मैम 10 वाटर को उबाल के एक कप में वो कॉटन के कपड़े में उसके अंदर सीड्स डाल के, चाय पत्ती डाल के और चीनी डाल के उसको बंद करके वो गिलास के अंदर डाल देते हैं। देन उसको गिलास को उबाला देते हैं, देन उसका जो लिक्विड होता है उस दूध को उबाल के उसमें डाल के फिर चाय सर्व करते हैं। उनका टोटली डिफरेंट है। तो मैम बात यही है कि यहाँ पे रहते हुए अगर लोग वो चीज कर सके, पी सके, टेस्ट कर सके तो उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मैम श्योर मैम मॉडल टाउन के अंदर है, यहाँ पे अपना पीपीआर मॉल के साथ में है शॉप्स वगैरह। पीपीआर में तो बहुत है मैम पर यूनिक है मैम, एक्चुअली बट ये है कि जलंधर में तो मैम किसी ने आज तक ये ट्राई नहीं किया है कि ये हाँ चाय अपना चाय वाला वो तो आपके लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन को कि हाँ जी मतलब आ जाओ, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मुझे लगता है कि आपको तो लोकेशन कोई और मतलब करनी चाहिए, कोई और सोचनी चाहिए मैम, बिकॉज मैम वहाँ तो अगर माहौल ही ऐसा है जिसने चाय पीनी तो वहीं पे आके पीता है। तो नहीं, अगर आपकी चाय बहुत अच्छी काम कर दे तो हर पर्सन वहाँ पे भी आ सकता है, तो वो आप ऐसे तो सोच सकते हैं। चलो कुछ और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपने ऐड करना हो मैम? इसमें हम स्नैक्स देंगे साथ में, यानी कि अपने जो रेगुलर स्नैक्स होते हैं, रेगुलर के मीडियम के एंड लार्ज के स्नैक्स होते हैं, वो रेगुलर स्नैक्स देंगे जो कि लोग स्नैक्स भी खा सके साथ में। यही नहीं कि सिर्फ चाय पीने आए, लोग स्नैक्स भी खा सकें। बस यही है मैम कि लोगों की फुलफिलनेस को पूरा करने का मेरा मोटिव है, यानी ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देके और से और आउटपुट अपना लेने का। थैंक यू। So my last call is for Arsh and Rajram. That's team number 5.
नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है। तो सर हम एक मॉडल आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो अभी प्लानिंग स्टेज पर है बट नॉट फॉर द बिजनेस। तो अभी उसको हमने उस लेवल पे लेके जाना है। तो मैं स्टार्ट करूँगा हिस्ट्री से। जो 1800 के अंदर हमने देखा था, जो थॉमस एडिसन ने एक बल्ब इन्वेंट किया था जो हमें लाइट प्रोवाइड करता था। उससे पहले जो लाइट हमारा आता था वो आती थी या तो दिया के फॉर्म में आती थी या हम कैंडल्स से करते थे। उसके बाद जो हमारी 1838 के अंदर आए हमारे सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स की तरफ से जो हमारे को लाइट जो आती थी वो सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट से आती थी और कोई हमारे पास नहीं था उसका। बट 1979 के अंदर हाइड्रो पावर्स हमारे को इन्वेंट हुए, जिसकी वजह से हम पानी की तरफ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू किया, जो इन एग्जिस्टेंस आई यूएस के अंदर 1981 के अंदर। 1979 के अंदर विंड पावर हमारे पास आई, जिसकी वजह से विंड थर्मल की वजह से हमने इलेक्ट्रिसिटी ज्वाइन करनी शुरू की। बट हम एक चीज़ भूल गए, जो हमारी सॉइल अर्थ के अंदर हमारे पास इतनी हीट है कि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। हम बस वही चीज़ एक भूल गए। हमने सारी अपनी रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, हमने विंड यूज़ कर लिया, हमने सन यूज़ कर लिया अपना, बट एक जो सॉइल है वो हम भूल गए। तो बेसिकली जो अर्थ की हीट है वो पैदा होती है, जो अर्थ के इतने सारे प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के कोर में होते हैं। तो वो जो हीट है वो अर्थ के सरफेस पे जब आती है तो उससे स्टीम पैदा होती है और उस स्टीम से हम पावर प्लांट बना सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंडिया डाटा 340 से ज़्यादा और स्पेस इंडिया में अनयूटिलाइज है, जिसे यूज़ करके हम जियोथर्मल पावर प्लांट बना सकते हैं, लेकिन वो अभी भी यूज़ नहीं किए जा सकते। तो अभी हमारा बेसिकली प्लान ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये जो अनयूज और अनटैप्ड पावर है उसको जनरेट करें, ताकि जो हमारी अर्थ है उसको एक क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी मिले। एक हम बायो पैनल्स होते हैं। बायो पैनल्स इज़ लाइक आप वहाँ पर कहीं पर भी उसको फिट कर सकते हैं, इट इज़ ईजिली फिटेबल। तो सोलर पैनल जैसे नहीं है कि आपको एक लार्ज एरिया चाहिए या आपको एक स्पेसिफिक वेदर चाहिए। वो जो बायो पैनल्स होंगे वो अंडर द ग्राउंड होंगे और अगर आप जैसे चल भी रहे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारा फ्यूचर प्रोपोजिशन ये है, पहले तो ये टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाना इंडिया में, और फ्यूचर में हम रियल इस्टेट से कॉन्ट्रैक्ट करके B2B के तौर से हम जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो घर की उससे पहले ही उसके अंडर ये पैनल्स को कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। इसको हम कंपलसरी बनाएंगे। जैसे हमारे को इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे को प्राइवेट कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही ये एक कंपलसरी एक्ट होगा कि हर घर के अंदर आपको एक ना एक बायो पैनल्स लगाना है। तो इसके बेनिफिट्स ये है कि ये क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये ग्रीन अर्थ के मोटिव को भी प्रमोट करता है, क्योंकि जैसे ही सॉइल में हम पैनल्स लगाने शुरू करेंगे ना, उस सॉइल में प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जो कि ग्रीन अर्थ का मोटो प्रमोट करेगा। और उससे एंड सेकेंडली सर जो हमारा बायो पैनल्स है, बायो पैनल से आप अर्थ की जो 4 डिग्री तक हीट आप कम कर सकते हैं। एंड सेकेंडली 334 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एटमोसफेयर में है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे एयर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस और फास्ट हो सकता है। तो कंक्लूजन में सर हम ये आपको बताएंगे कि जो हमारे को एक लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत है, जो लैंड हम गवर्नमेंट से लेंगे और उसके ऊपर 30% हमारे को सब्सिडी भी देती है। तो एक हमारे को लैंड चाहिए जिसके अंदर हम ये थर्मल पावर प्लांट्स और हम अपने बायो पैनल्स इंसर्ट करेंगे, जिसके वजह से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। इनकी लाइफ कितनी होगी बायो पैनल की? सर इसकी कोई लाइफ नहीं होती। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, आप अगर आप इस टाइम भी आप कॉलेज के अंदर आप चल रहे हैं तो आपका अगर आपके नीचे वहाँ पर बायो पैनल्स लगे हुए हैं तो आपकी एनर्जी सेव हो सकती है। वंस फॉर अ लाइफ एक बार आपको लगाना पड़ेगा, जैसे सोलर पैनल्स। सोलर पैनल की तो लाइफ है ना, उसकी तो सर लाइफ है। अब आप यहाँ पर चल रहे हैं तो वो साथ साथ ही आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सर मूवमेंट से होगा या वैसे भी वो हीट को? सर मूवमेंट एंड हीट बोथ, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं ना सॉइल में, वो जब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी छोड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जाया जाते हैं। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें वायर्स लगा के उससे बैटरी बना सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं।
वो सब नीचे आना बनी ही रह जाती है। मतलब कैसे होता है? अभी हम ये प्लानिंग स्टेज पे, ये इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है हमने, तो वो प्रॉपर उसके बाद के हम आपको मतलब बाकी ये जो गवर्नमेंट की इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट है, सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बात बोल रहे हैं, ये चीज़ें हैं, सारे हर्डल्स हैं। नहीं, ये तो आइडिया आपने ये तो आइडिया तो बहुत लिया, अच्छा आपने लिया कहीं से, और इसको कहीं किसी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अभी तक हमने नहीं किया है सर इसको, अभी तक नहीं किया है, बट सर हम आगे इसको पहले रिसर्च इसके बारे में और करना चाहते हैं। कोई और कंट्री फॉलो कर रही है इसको? अभी यूएस में एक कंपनी है बायू नाम की, लेकिन वो कमर्शियल यूज़ के लिए अभी नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो भी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ मैम, ये अभी रिसर्च ही चल रहा है मैम इसके बारे में कि हम कैसे इसको एनर्जी हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में कोई कंपनी? इंडिया नहीं सर, इंडिया में भी कोई नहीं। आप बोल लो। थैंक यू सर, थैंक यू। सब पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा किया, तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर संजीव दवन सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। जो रिजल्ट है वो थोड़ा रिजल्ट करेंगे क्योंकि डिस्कस करने के बाद हम सुबह मेल करेंगे। तो आपने अगर सर की बात सुनी तो सर ने बोला कि अभी डिस्कस हो रहा है रिजल्ट, तो आपको सुबह मेल हो जाएगा रिजल्ट। ओके सर, प्लीज। Dear students, all the participants have put 100% effort in their presentation. It is really difficult for us to reach an immediate conclusion because all the plans are wonderful. The most important thing is all the plans are workable. Nothing is in the wind. Everything that can be realized on the ground level, all plans are there. So give us some time to analyze, because whenever there is a competition we have to go through 1, 2 and 3 places. So give us one day to discuss all the aspects, your workability, feasibility, ideas, presentation, because all aspects I have noted down here which are there on the basis of which your plans will be judged. Thank you very much for your participation in this event, and I congratulate all the participants. It's not part that who is going to be the first or second. Participation is more important. Coming to the dais and speaking in front of the audience, that is more important for you, because this will give you confidence in future that how you can present yourself in front of the people. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आप लोगों से आखिरी दरख्वास्त मेरी, सारे खड़े हो जाए नेशनल एंथम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you very much. You could live there now. Thank you so much everybody.